Go ahead, Ram Kabir. राम कबीर सदगुरु कबीर साहेब की जय। चलो जाए गुरु के द्वार, साधो जाए गुरु जी के द्वार। जाए गुरु जी के द्वार, साधो जाए गुरु जी के द्वार। प्रेम पीठिका प्रेम पीठिका हृदय खंड देवा। वाण है अंग विचार, साधो जाए गुरु जी के द्वार। चलो जाए गुरु जी के द्वार, साधो जाए गुरु जी के द्वार। साधो जाए गुरु जी के द्वार, साधो जाए गुरु जी के द्वार। सत संतोष है रंग महारस, पुण्य संसार विकार। संतोष है रंग महारस, पुण्य संसार विकार। नान मसाल निरंतर निर्मल, नान मसाल निरंतर निर्मल। आए ना अंधकार, साधो जाए गुरु जी के द्वार। चलो जाए गुरु जी के द्वार, साधो जाए गुरु जी के द्वार। साधो जाए गुरु जी के द्वार, साधो जाए गुरु जी के द्वार। आश्रय आंगन धूप धर्म की, विधि मुक्त विधान। आश्रय आंगन धूप धर्म की, विधि मुक्त विधान। कहता कबीरा सुन भाई साधो, कहता कबीरा सुन भाई साधो। गुर गुण गाए सार, साधो जाए गुरु जी के द्वार। चलो जाए गुरु जी के द्वार, साधो जाए गुरु जी के द्वार। जाए गुरु जी के द्वार, साधो जाए गुरु जी के द्वार। साधो जाए गुरु जी के द्वार। राम कबीर सबने सौने राम कबीर। ओम श्री सद्गुरु कबीराय नमः। आप सौ ભક્તજનોમાં વસેલ કબીરના રામ આત્મારામને સપ્રેમે વંદન। સદગુરુની પ્રાર્થના ભજન સાધુ જાયે ગુરુજી કે દ્વાર। શ્રીમતી ધર્મિષ્ઠાબેન આનંદભાઈ ભક્ત સેનસેનાટીથી આ ભજન એમણે સંભળાવ્યું
ખૂબ જ આનંદની લાગણી સહિત તેમનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. રામકબીર ધર્મિષ્ઠાબેન. શ્રી રામકબીર ભક્ત સમાજ ઓફ USA તથા સર્વે ચેપ્ટરો અને સર્વે ભક્ત સંસ્થાઓના સેવાભાવી સેવકો તરફથી આજના કબીર વિઝડમ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર, ફેસબુક લાઈવ અને સમય મળીએ યુટ્યુબ પર જોનાર સર્વે કબીર પ્રેમી ભક્તજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરતા આનંદ અનુભવીએ છીએ. આજે શ્રી અભયદાસજી મહારાજની સાથે સર્વે ભક્તજનો સાથે મળી ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવીશું. સદગુરુ કબીર સાહેબની જ્ઞાનવાણી તેમના મુખે સાંભળીશું. સત્સંગ બાદ જોડાયેલા ભક્તજનોને તેમના સત્સંગ વિશે કોઈ અભિપ્રાય હશે તો તેની ચર્ચા બાદ કાર્યક્રમને આપણે સમયસર સમાપ્ત કરીશું. વિશ્વમાં સર્વે સુખી રહો, સર્વે નિરામય દુઃખ રહિત હો, સર્વેનું કલ્યાણ થાવું તેવી ભાવના સાથે અને વિશ્વના ભક્ત પરિવારોએ ગુમાવેલ સ્વજનોને અશ્રુભીના હૃદયના ભાવે શ્રદ્ધાસુમન અર્પિત કરી તે સર્વે પુણ્ય આત્માઓને ચીર શાંતિ મળે અને પરિવારને માનસિક શારીરિક સક્ષમતા આપે તેવી શુભ ભાવના સાથે સૌએ આજે આ પ્રાર્થના કરી. કબીર વિઝડમ સર્વે કબીર પ્રેમી ભક્તજનોનો આધ્યાત્મિક વિસામો છે. રોજિંદા જીવનની આદિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં પણ સમાધિ રહી શાશ્વત શાંતિની સમજણ આપે છે. સદગુરુની વાણીને સાંભળવું, વાંચવું, મનન કરવાની સાથે સાથે જાગ્રત રહી સૌ આચરણમાં મૂકે, અંગત જીવનમાં પરિવર્તન લાવે એવી શુભ ભાવના અને એ જ આ કાર્યક્રમનો હેતુ છે. આવી કે અષાઢ સુદ પૂર્ણિમાનો દિવસ એટલે ગુરુ પૂર્ણિમા. રામકબીર ભક્ત સંપ્રદાયના સદગુરુ કબીર સાહેબની જ્ઞાનવાણીએ જ્ઞાન પીપાસુ ભક્તજનો ના પ્રજ્ઞાચક્ષુ ઉગાડી આત્માનું લક્ષ બેસાડ્યું, ચિત્ત શુદ્ધ કરી આત્મભાવમાં બેસાડ્યા. આવા આપણા સદગુરુને મસ્તક નમાવી કોટી કોટી વંદન. અને રામકબીર ઘણા ભક્તજનોએ આ પવિત્ર દિને પોતાના પ્રત્યક્ષ પૂજ્ય ગુરુદેવના દર્શન, પૂજન અને ભક્તિથી આત્મસમર્પણ કર્યું. ગુરુ દ્વારા મળતી શિક્ષાથી શિષ્યને આંખ અને પાંખ મળી, એટલે કે નૂતન દ્રષ્ટિ અને નૂતન દિશા મળી. કબીર વિઝડમ ટીમ તરફથી સર્વે ગુરુજનોને નમસ્કાર અને રામકબીર. તો આવો હેમંતભાઈ, પૂજ્ય શ્રી અભયદાસજી મહારાજને આવકારી એમનો પરિચય આપી આજનો સત્સંગ આપણે શરૂ કરીએ. રામકબીર. રામકબીર. થેન્ક યુ પ્રફુલભાઈ. રામકબીર સર્વ ભક્તજનોને સન્ડે કબીર વિઝડમ કે જ્યાં આપણે પ્રફુલભાઈએ કહ્યું તેમ કે આપણે આપણા ગુરુની જેટલું નજીક જઈ શકીએ એટલું જઈ શકવાનો એક સમય, અને એ સમયમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે. રવિવાર એટલે આપણે ચૂકી નહીં શકીએ, અને એના માટે આપણી આધ્યાત્મિક જ્ઞાન વધે, આપણામાં સંતોષ થાય એ માટેના જે પ્રયાસ છે એ માટે તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત. હવે આજના જે પ્રવક્તા આપણી પાસે છે, આપણી સાથે છે, જેઓ ઇન્ડિયાથી જોડાયા છે, અને આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે ઇન્ડિયામાં અત્યારે કેટલા વાગ્યા હશે, અને છતાં આપણા માટે જે સમય આપણી સાથે જોડાયા છે, એવા પ્રથમ તો હું એમને આમંત્રણ આપું છું કે શ્રી અભયદાસજી. रामकबीर, श्री अभयदास जी. रामकबीर सभी यूएसए के भक्त समाज को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद. अभी तो पहले मैं अभयदास जी का परिचय थोड़ा गुजराती में करूंगा, उसको परिचय माफ करना अभयदास जी. तो आपने बधाने खबर है कि આપણે લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરી એ પ્રમાણે એમણે એરપોર્ટ પર રહીને આપણી સાથે થોડું વાર્તાલાપ કર્યો હતો, અને બહુ સુંદર વાર્તાલાપ, અને આપણે એમની સિદ્ધિ પણ જોઈ હતી. એવો અગેન તમને યાદ કરાવી દઉં તો ઓનલી 27 years અને 4 years ના હતા ત્યારથી સંન્યાસ લઈને એમની આજ સુધીની જે પ્રગતિ, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ છે, અને એમનામાં જે એક આપણાને મળવાની આતુરતા છે, એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઇન્ડિયામાં પણ કેટલા વાગ્યે પણ
આપણા માટે એક જહેમત ઉઠાવીને આપણી સાથે જોડાય છે અને 27 વર્ષની એક નાની ઉંમરે જગતની અંદર જે આપણે જેને આપણે આપણા અત્યારે હિન્દુ ધર્મની અંદર આપણે આગળના પંક્તિમાં મૂકીએ છીએ અને જે હિન્દુ ધર્મ માટે ખૂબ કાર્ય કરે છે એવા આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ એમને પણ મળ્યા છે રામદેવ બાબા સાથે શ્રી રવિશંકરજી જોડે અને ઘણી ડિગ્નિટી આપણે જેને કહી શકાય એવા જોડે એમની મુલાકાત થઈ છે એમની પર્સનલી એમની સાથે મુલાકાત થઈ છે પર્સનલ એટલા માટે પર્સનલી પર હું એમ્ફેસાઇઝ કરું છું કે એના એ લેવલ પર આપણે પહોંચવા માટે તો આપણે કેટલી કડી મહેનત કરવી પડે છે એવી જે પોતાના જ્ઞાન થકી મેળવી શકે છે આપણે તો આપણી કેટલી ઓળખાણો થકી મેળવી શકતા હોઈએ છીએ અને છતાં પણ ત્યાં નહીં પહોંચી શકતા હોઈએ તો એવી નાની ઉંમરે આટલી બધી અચીવમેન્ટ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે વાત કરી એ પ્રમાણે એઓ જતા હતા અને બધાને યાદ કરાવી દઉં તો એઓ અહીંથી આપણી જોડે લાસ્ટ ટાઈમ વાત કર્યા પછી એઓ ઇંગ્લેન્ડ ગયા હતા ઇંગ્લેન્ડમાં ત્યાં એમનું પ્રવચન હતું ત્યારબાદ સ્વીડનની અંદર યુનોના બિલ્ડિંગમાં એમનું પ્રવચન હતું અને વિશેષ તે દિવસે યોગા દિન હોવાથી એમણે યુનોના બિલ્ડિંગમાં જે બધાની સાથે રહીને યોગા દિનની ઉજવણી કરી હતી કેટલું મોટું એચીવમેન્ટ અને એવું એચીવમેન્ટ જ્યારે આપણે આપણી સાથે આવીને આપણને વાત કરે અને પર્સનલી આપણને કહી ત્યારે આપણને બહુ આનંદ થાય છે અને આપણે ભગવાનનો આજે પ્રાર્થના કરીએ કે ખરેખર અમને અમારા ગુરુ પૂર્ણિમાની અમારી જે ઈચ્છા હતી એ તમે પૂરી કરો છો હવે લાસ્ટ ટાઈમની જે વાત હતી એ માટે હું કહું છું લાસ્ટ ટાઈમ ગુરુજીએ આપણને થોડી વિડીયો મુલાકાત કરી એમાં એમણે કહ્યું હતું આપણને કે આપણે હુ એમ આઈ આ જે આધ્યાત્મિક જર્ની છે એ હુ એમ આઈ થી લઈને આપણા લક્ષ્ય તરફથી જે જર્ની થાય છે આપણી ઓળખ કોણ છું અને આપણા લક્ષ્ય તરફ જવાની જે જર્ની થાય છે એ જર્ની આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ એને પ્રગતિમય રાખવી જોઈએ અને એના વિશે બહુ સુંદર વાતો કરી છે તમે બધા એ વિડીયો યુટ્યુબ પર છે જ આપણી પાસે અવેલેબલ તમે જોઈ શકો છો અને એમની આ જે જર્નીમાં એમણે કહ્યું હતું કે ઘણીવાર ઘણા જે સામાન્ય દુનિયામાં જે સામાન્ય લોકો છે એ ઘણીવાર ઘણી કંઈક ભૂલો કરી બેસે છે એને એમણે બહુ સરસ શબ્દ વાપર્યો હતો ત્યારે કે દુનિયાવી ગિલ્ટી દુનિયામાં સામાન્ય રીતે જે ગિલ્ટી કરી શકે છે કરાઈ જાય છે જાણીએ અજાણીએ તો એ ગિલ્ટી માટેની એમણે બહુ સુંદર વાતો કરી હતી તો આજે ફરીથી श्री अभयदास जी आपको नमस्कार करते हुए वैसे हमारी वैसी हस्ती नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन भी कर सके फिर भी हमें थोड़ी जानने की ये लालच है अभी कि आप हमें बताइए कि जो लास्ट टाइम आपने बोला था कि जो हु एम आई और जो हमारी जर्नी के बारे में कि हमारे जर्नी टू गो टुवर्ड्स टू आवर गोल अल्टीमेट गोल एंड गोल सो कैन यू टेल अस that in this journey what kind of difficulties or what kind of dunyavi galti which you are mentioning that time what are those and how do we achieve and on those stuff on the special subject how Kabirji give us the advice and Kabirji's knowledge help us to lead and to be a successful on that side. So please welcome and tell us about that. Very rich and very precious question that you have asked me. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अमेरिका में बैठे हुए हमारे सभी राम कबीर भक्त समाज के जितने भी श्रोता, जितने भी मुमुक्षु जन, जितने भी जिज्ञासु जन, पिपासु जिन्हें कहते हैं, जो प्यासे हैं और हर वक्त लालायित रहते हैं कि हम कबीर साहब के मार्ग से, उनके बताए हुए ज्ञान से, उनके बताए हुए विवेक से, उनके बताए हुए मार्ग से हम यह जान सकें कि हम कौन हैं। यहाँ तो शुरू में प्रफुल्ल भाई ने बहुत सुंदर बात कही, जहाँ पर अनुभव और उस गिल्ट की बात आती है जो हम सबके अंदर कहीं न कहीं छुपा रहता है, हर छोटी से छोटी गलती को लेकर के।
प्रफुल्ल भाई ने बड़ा सुंदर कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये जो पूरा विश्व है, इसको सुखी रखने की कामना करने की बात सिर्फ भारत देश से निकलती है। हम लोगों के संस्कारों में, हमारे ऋषियों की परंपरा में, हमारे महापुरुषों की इस परंपरा में पूरे विश्व के कल्याण को और पूरे विश्व को सुख प्रदान करने की चेष्टा की गई है। क्यों कहा गया ऐसा? क्यों? क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में शांति, सुख और प्रसन्नता देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इस दुनिया में ना हमारे अनुभव बुरे हो, ना दुनिया में हमसे जुड़े किसी व्यक्ति के अनुभव बुरे हो। और यह बात वही कह सकता है जो जान जाता है कि वह कौन है। जब तक जो नहीं जानता कि वह कौन है, तब तक वह ये बात कहने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता। इसलिए हमें यह जानना होगा कि जिसे हम कबीर कहते हैं, जिसे हम इतने बड़े हमारे लिए जो भगवान है, वो भगवान वास्तव में है क्या? कबीर साहब को जैसे कि एक व्यक्ति कबीर जो जन्म लेता है या शरीर लेकर के सशरीर लीला करने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। यहाँ पर वो व्यक्ति कबीर महत्वपूर्ण नहीं है, जिसकी तस्वीर हम पूजा कर रहे हैं, दाढ़ी वाले या टोपी वाले या सफेद वस्त्रधारी। ये तो श्रद्धा का विषय है कि जब हम श्रद्धा किसी से करते हैं, किसी से जुड़ते हैं, किसी से मिलते हैं, तो उसके स्वरूप से भी हमें प्रेम होता है, उसके उसके तेज से, उसके ओज से भी हमें प्रेम होता है, उनकी वाणी से हमें प्रेम होता है। लेकिन असल कबीर कौन है? कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा बीज शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। कबीर भी वही है। कबीर कबीर इसलिए कहलाए, कबीर को आज तक हम लोग इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि कबीर ने स्वयं ने कहा कि मेरा नाम कबीर है। यह कबीर शब्द जो है ना, यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसके पीछे का मर्म जानो। यह ब्रह्म जो इस बीज रूपी शरीर में, यह ब्रह्म जो इस बीज रूपी शरीर में रम रहा है, मैं वह हूं। यह बात उन्होंने सबसे पहले समाज के सामने रखी। तो कबीर शब्द जो है ना, वही हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम कौन है। जानने वाला तो यहीं से मार्ग प्राप्त कर सकता है, इससे ज्यादा गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कबीर साहब ने ये इतने सारे पद जो लिखे, ये इतने सारे शब्द जो लिखे, ये इतनी सारी बातें जो लिखी, ये तरह-तरह के स्वभाव वाले लोगों को भी कैसे इस महत्व को जनाया जाए, इस बात को उनके जीवन में उतारा जाए, उसके लिए इतने शब्द लिखने पड़े। उन्होंने जीवन के हर पड़ाव के हर अनुभव को समाज के सामने रखा। जवान कबीर क्या कह रहा है? मैच्योर कबीर क्या कह रहा है? मध्य अवस्था का कबीर क्या कह रहा है? बुजुर्ग कबीर क्या कह रहे हैं जब उनकी अवस्था हो गई होगी 70-80 वर्ष के लगभग, 100 वर्ष के लगभग, ये अनहद नाद और शून्य शिखर में श्वासोश्वास में माला फेर करके अपने आप को शून्यता की ओर ले जाना, यह कौन सा कबीर कह रहे हैं? कबीर की कौन सी आयु कह रही है? उन्होंने आयु के हर खंड में अलग अलग तरह के शब्दों की, अलग अलग अनुभवों की और अलग अलग प्रकार के जितने भी आयु के अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, उनको जोड़ करके शब्दों के माध्यम, पदों के माध्यम से उन्होंने ये सारे शब्द लिखे। अभी जो शुरू में हमारी जो देवी जी हैं, उन्होंने कितना सुंदर भजन गाया गुरु की महिमा का। गुरु की महिमा इसलिए गाई गई कि जब तक हम मार्गदर्शक, हमारे हमें मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति के प्रति समर्पण नहीं रखेंगे, तब तक उसकी किसी कही हुई बात पर हम अडिग नहीं रहेंगे, हम टिके नहीं रहेंगे। इसलिए हमें उस मार्गदर्शक का महिमा मंडन करना होता है। ये महिमा मंडन से आध्यात्म का लेना देना नहीं, लेकिन महिमा मंडन इसलिए किया जाता है कि उसके प्रति श्रद्धा बनेगी, तो हम स्वतः ही उसके बताए हुए मार्ग पर चल पाएंगे। बाकी महत्वपूर्ण क्या है? गुजराती में एक पद गाया जाता है, अभी हाल ही में मैंने सुना, ए जी माने जीनो जीनो शब्द सुनाय,
ए जी माने झीणो झीणो नाद सांभळाय गुरुजी म्हारा આવે છે એ જી એને એનો સવરીરો સુર સાંભળાય गुरुजी म्हारा આવે છે। क्या अर्थ है इसका? वो कौन सा झीणा शब्द है? वो कौन सा अनहद नाद है जो वो हमें सुनाना चाहते हैं? वो अनहद नाद है जो कहता है कि तू ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म का चिंतन कर। आध्यात्म की राह यहीं से प्रारंभ होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर गुरु की महिमा, संतों की महिमा, सत्संग की महिमा सुनते-सुनते, गाते-गाते अगर आपको कई वर्ष बीत गए हैं, तो अब हमें उससे आगे का जानना होगा कि इस महिमा मंडन के बाद गुरु ने जो हमें नाद सुनाया, उस नाद को किसने गौर किया? उस नाद पर किसने अपनी सुरती को स्थिर किया? उस नाद पर अपनी निरति को किसने स्थिर किया? उस नाद के लिए किसी ने अपने वचनों को स्थिर किया या उस नाद पर चिंतन करते हुए किसने अपने शरीर को, तन को स्थिर किया? उस नाद का चिंतन करते हुए किसने अपने मन को स्थिर किया? तभी तो कबीर साहब की कही हुई उस बात को आप समझ पाएंगे जिसमें कहा तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति निरति थिर होए, कहे कबीर ता जीव को कल्प न पहुंचे कोई। कहाँ गई वो स्थिति? वह स्थिति तो न बोलने के लिए कहती है, न हिलने डुलने के लिए कहती है। वह स्थिति न सुरती की दौड़ के लिए है, न वो नृत्य की दौड़ के लिए है। वह स्थिति तो हमें बिल्कुल शांत होने के लिए कहती है। और वो शांति वैसी ही है जो सोने पर मिलती है। शरीर स्थिर हो जाता है, अचेत हो जाता है। अब उस शांति में और इस शांति में फ़र्क इतना है, वहाँ पर शरीर शांत है लेकिन अचेत है। हमें वही शांति चाहिए जहाँ शरीर में शांति हो लेकिन अचेत ना हो, चेतना जगी रहे। बस वह शांति पाने के लिए हम लोग झीणो झीणो नाद सांभळाय गुरुजी म्हारा આવે છે। इसलिए ऐसे गुरु महाराज के आने को, उनके होने को हम धन्य भागी समझते हैं। कबीर साहब हमारे गुरु हैं। गुरु को हम भगवान का रूप मानते हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। इसलिए कबीर को जिसने मान लिया ना, वो पूरे जग के सभी महापुरुषों की हर अवधारणा को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर हम कई बार गलत हो जाते हैं। कबीर के अलावा इस दुनिया में और कोई हमें श्रेष्ठ नजर नहीं आता। ना, कबीर साहब की मानसिकता ऐसी है जो जगत के सभी महापुरुषों की अवधारणा को स्वीकार कर, सबको स्वीकार करने वाले कबीर हैं। मार्ग चाहे कोई सा हो, कहीं से भी घुसो, किसी भी रास्ते से जाओ, उनके जब शब्द को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, प्रेम की इतनी व्याख्या करने वाला महापुरुष कौन कहता है कि कबीर साहब कड़वा बोलते थे? झूठ बोलते हैं वो लोग। कबीर ने कड़वा तब बोला होगा जब अपनी आंखों के सामने हिंसा देखी हो। ये तो व्यक्ति के जीवन में होता है। आपके सामने कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दो विवाद चल रहे हैं, उस समय आपको आवाज को तेज करनी होगी, स्वर को तेज करना होगा अगर बात सत्यता की कहनी होगी। तो जब आवश्यकता पड़ी, जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने हिंसा देखी होगी, तब उन्होंने बात कड़वी भी कही होगी। लेकिन जब बात उनके व्यक्तिगत हृदय की करें, तो उन्होंने प्रेम की क्या व्याख्या की है साहब, है? उन्होंने जैसा कहा वैसा तो किसी ने कहा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, कबीर साहब को समझने के लिए बड़ा गंभीरता से हमें उनके शब्द, उनकी रामायणी, उनके विचार, उनके एक-एक कदम को समझना पड़ेगा। जो दुनिया के सभी धर्मों को स्वीकार करे, जो दुनिया की हर व्यवस्था को स्वीकार करे और स्वीकार करके इनसे ऊपर उठे। जब तक स्वीकार नहीं करोगे, तब तक किसी का हाथ पकड़ के आप किसी को आगे नहीं ले जा सकते। हम सभी चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है ना, इस महापुरुष के अध्यात्म के उस शिखर विचारों को प्राप्त करे। अगर चाहते हैं तो हमें सबको साथ लेना पड़ेगा और जब साथ लेना होता है, तब सबके विचारों को स्वीकार करना होगा।
स्वीकार करने वाला श्रेष्ठ होता है। नहीं कहा जाता घर का मुखिया श्रेष्ठ कौन होता है? जो घर के हर सदस्य की सुनता है, घर के हर सदस्य को स्वीकार करता है, चाहे वो छोटे से छोटा बालक ही क्यों ना हो, कभी उस बालक का अपमान नहीं करता, उसके विचारों का अपमान नहीं करता, क्योंकि वो मुखिया जानता है आज मैंने अगर इस बालक के विचारों को दबा दिया तो जिंदगी भर इसके मानसिक बुद्धि कौशल का विकास खत्म हो जाएगा। हम वो लोग हैं जो हमें दुनिया के सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी विचारधारा के लोगों को साथ लेकर उन्हें बताना है कि आप सबकी बात आपने कही, हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बार कबीर के इस आध्यात्म को भी जान करके देखिए। ये स्वीकार करके दुनिया को एक मार्ग पर ले जाने का मार्ग कबीर साहब का है। कबीर साहब का मार्ग विध्वंसकारी नहीं है, कट्टरवाद से जुड़ा नहीं है। कबीर साहब का मार्ग प्रेम का मार्ग है। तो ऐसे महापुरुष के आप सभी चिंतन है, उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अब जब आप किसी धर्म, किसी व्यक्ति, किसी संप्रदाय, जब एक को श्रेष्ठ करने निकलते हैं तो ये भी अनुभव बुरा है, इसका भी गिल्ट होगा। और एक चीज और बताऊं, आपको मजा तब आएगा जब आप किताबें सारी पढ़ लेंगे, तब आप कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बेहतर कर पाएंगे कि कौन सी किताब बेहतर थी। सारे महापुरुषों को पढ़ो, सारे महापुरुषों को जानो, यहाँ तक कि अन्य धर्म की भी किताबें पढ़ लो। अनुभव लेने में कोई गलत नहीं है, जानकारी लो, जानो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उनमें कौन सी चीज ठीक है, जो हमारे लायक है, हमारे काम आएगी, उन सबको स्वीकार करो और उसके बाद पता करो। एक आदमी है जो अकेला ही रेस में दौड़ेगा और वो कहेगा कि मैं जीत गया, वो जीत नहीं है साहब। जीत तो तब होती है जब आपके साथ कई लोग दौड़े और फिर आप आगे निकले। पढ़ो, आप जानो सबको। राम की परंपरा हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे शिव की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सबको पढ़ता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ, सबको जानता हूँ, सबके मर्म को जानता हूँ, लेकिन तब मैं निर्णय कर पाता हूँ कि बेस्ट कौन सा है। और बेस्ट वाली होड़ में भी खत्म नहीं रहना है। मुझे पता है श्रेष्ठ कौन है, मुझे चलना है उसके मार्ग पर, लेकिन मुझे यह स्पर्धा समाज में नहीं डालनी है। पढ़ो, सब जानो, जो आपको श्रेष्ठ लगे निकल पड़ो, क्योंकि आध्यात्म में चाहे राम का मार्ग हो, चाहे कृष्ण का मार्ग हो, चाहे शिव का हो, चाहे हमारे संत महापुरुषों का हो, आध्यात्म में मार्ग आकर के नहीं रुकता है। जिस जीने जीने अनहद नाद की मैंने बात इस भजन में की ना, आध्यात्म का मार्ग रुकेगा वहीं आकर के। और जहां वो धर्म का मार्ग रुकता है, वहीं से आध्यात्म का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। तो ये धर्म के वाद से, समूहवाद से, पंथवाद से, संप्रदायवाद से, ये ग्रुपिज्म, कम्युनिज्म, इन सब से बाहर निकलने के बाद आध्यात्म शुरू होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। इससे बाहर निकलना होगा, चिंतन करना होगा और एक नई यात्रा को प्राप्त करना होगा। अब आइए, आज के हम जितने भी सवालों का सेशन है, मेरा निवेदन रहेगा कि सवालों वाले सेशन में, प्रश्न वाले क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में जो भी सवाल पूछे वो अध्यात्म की खोज में वो कहाँ पर है, वहां से अपना सवाल प्रारंभ करें। ये शब्द का अर्थ जानना, पद का अर्थ जानना, भजनों का अर्थ जानना, वाणी का अर्थ जानना, यह तो आप करते आ रहे हैं। तो आज आपका ये जो अमूल्य समय है ना, इसको उसमें मत ले जाइएगा। आप सिर्फ ये जानने की कोशिश करें कि महाराज जी या बापू मैं यहाँ पर हूँ, अभी मैंने अपनी यात्रा यहाँ से शुरू की, यहाँ पहुंचा हूँ, आगे क्या करना है ये बताओ। तो आनंद मुझे भी आएगा कि चलो मैं आपके इस यात्रा का सारथी बना। मुझे गुरु बनने का कोई शौक नहीं है, ना मुझे बनना है। मैं तो आपका साथी बनना चाहता हूँ, आपका सहयोगी बनना चाहता हूँ। क्योंकि सहयोगी बनने में जो आनंद है ना, गुरु बन के तो मैं भी बहुत ज्यादा बोझिल हो जाता हूँ, भार मुझसे सहन नहीं होता। इतना भार मेरे पे मत डालो। मैं सहयोगी बनना चाहता हूँ, आपकी यात्रा का सहयोगी। तो सवाल जवाब का सेशन चालू करिए हेमंत भाई, जो बस जिसका तो भाव है वो पूछिए। हाँ ना, आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारे सहयोगी बन गए। तो सहयोगी तो अभी अगर हम पीछे रह जाए तो आप हमें थोड़ा अपनी उंगली दे के हमें भी आगे कर सकते हैं आपके साथ। तो आपने बताया एक चीज कि यहाँ पे जो जो जीना जीना आवाज की बात करें आप, वो आवाज में आप बोल रहे हो कि
हमें ये आवाज सुनाई देगी। मगर क्या है, अभी देखो हमारी अमेरिका में क्या स्थिति है अभी कि यहाँ पे जैसे बहुत सारी आवाजें आती है। जैसे अभी जानते हो कि पोल्यूशन हो रहा है ना, तो ये पोल्यूशन आवाज यानी कि इसका ओपिनियंस और कुछ है, इसका ओपिनियन कुछ है, इसका ओपिनियन कुछ है। तो अभी उसमें स्थिर रहने के लिए अभी कोई एक ओपिनियन में, और अगर ये जो प्रोसेस है ना, पहले तो कि कौन सी ओपिनियन निकालनी है। जैसे हम अगर देखो कुछ चीज करते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए हम सोचते हैं कि भाई चलो ये जो माटी है निकाल देते हैं, ये कंकर है वो निकाल देते हैं। तो अभी इस प्रोसेस में हमें यहाँ पे बहुत सारी, तो हम पहले तो कैसे प्रोसेस चालू करें कि क्या हमें निकालना है, क्या रखना है। देखो, ओपिनियंस तो कभी दुनिया में किसी के सोच में पड़ना है। आप जैसे कई थक गए, कबीर साहब जैसे 600 साल पहले हो गए, 600 साल बाद भी ओपिनियन एक नहीं हो पाया। क्योंकि जितने स्वभाव उतने ओपिनियन, जितने विचार उतने ओपिनियन, हर व्यक्ति, जितने व्यक्ति उतने ओपिनियन। ओपिनियन कभी एक नहीं हो सकते, ओपिनियन अलग रहेंगे। हमें फोकस करना है कि उन ओपिनियन का कंक्लूजन क्या है, वो कहाँ जाके खत्म हो रहे हैं। जहां वो खत्म होते हैं उनको वहां से पकड़ना है कि तुम्हारा ओपिनियन का रिजल्ट ये है, हो गया, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, जो तुम सोचते थे वो तुम्हें प्राप्त कर लिया। किसी को किसी मार्ग के लिए आप रोको ही मत, क्योंकि रोकना, हो सकता है कि वहां खतरा बनेगा कि वो छिप करके वो कार्य करेगा। किसी के मन में किसी के लिए अगर श्रद्धा है, किसी के मन में किसी चीज को करने की इच्छा है, इच्छाओं को रोका तो नहीं जा सकता। बात संयम की है। आज के युग में संयम पॉसिबल नहीं है, चाहे कोई भी हो। सत्य को स्वीकार करना सीखो। संयम आज के युग में पॉसिबल नहीं है। तो जिसकी जो इच्छा है उस इच्छा को एक बार अंत तक जाने दो कि उसका निष्कर्ष क्या है। अमेरिका जैसे देश में, जहां पर ह्यूमन राइट्स इतना अप है कि आप किसी की इच्छाओं को रोक नहीं सकते हैं, संयमित नहीं कर सकते, वहां पर इच्छा को खत्म करना ही एक प्रकार का रास्ता है। रोकना तो भारत में तो संभव है, फिर भी मैं किसी पे दबाव बना सकता हूँ, किसी को डांट सकता हूँ, किसी को प्रेशराइज कर सकता हूँ। आज भी गुरु शिष्य परंपरा में अगर हम शिष्य को कह दें कि बेटा नीचे बैठ, धन नीचे बैठ होता है, फिर वो खड़ा नहीं होता। लेकिन जिन देशों में आप रह रहे हैं, उन देशों में ये संभव नहीं है। उनके खून में, उनके विचारों में, उनके उनके सिस्टम में, जब वो किड्स प्ले जोन में जाते हैं और वहां से फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में आते हैं, वहीं से भर दिया जाता है। तो इस होड़ में बिल्कुल मत लगो, इससे खतरा है, कोई संभवतया नहीं। अब तो है कि जो वो करना चाहते हैं, एक फ्लो के साथ उसे होने दीजिए, उनके ओपिनियन को निष्कर्ष तक जाने दीजिए। उस निष्कर्ष में जहां पे भी वो खत्म हो जाए और फिर ढूंढे कि आगे क्या, तब हमें उन्हें पकड़ना है। आगे तुम्हें जो ढूंढना है वो मैं बताऊंगा, आजा भाई, अब तुम हमारे साथे में ढल। इससे ज्यादा और कोई तरीका नहीं, सरल है, सहज है और सत्य है। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल आंसर। तो मैं आपको किसी उस सांसारिक जाल में उलझाना नहीं चाहूंगा। यहाँ यहाँ एक प्रकार का धर्म जाल भी दुनिया में बहुत तगड़ा चल रहा है, तो यहाँ धर्म जाल में भी नहीं उलझाऊंगा कि ये कर, वो कर, वो कर, साहिब ने यहाँ ये कहा। प्रैक्टिकलिटी में साहब 600 साल पहले कह के गए, और उन्होंने भारत की दृष्टिकोण से कहा था, अमेरिका की दृष्टिकोण से नहीं कहा था कि 600 साल बाद अमेरिका में ये भक्ता लोग चले जाएंगे और वहां की सिचुएशन कैसी होगी। तो साहेब के ज्ञान को हमें तब देना है जब उनके ओपिनियंस पूरे हो जाएं, एक सर्टेन लेवल पे, जब वो मैं क्या करूं उस स्टेज पे आ जावे, तब उनके साथ बैठना है, स्लोली स्लोली डिस्कशन स्टार्ट करना है, उनके कंफर्टेबल जोन पे जाना है कि जहां पे वो कंफर्ट फील कर रहे हैं, उस कंफर्ट में जाकर के हमें शुरुआत करनी। और ऐसे में चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, युवा हो, चाहे 30-40 एज का हो, कोई भी हो, वो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा आपने बोला है कि जो कोई सिचुएशन है उसको अपोज मत करो, जस्ट स्टडी इट, नहीं, conclude it, and try start your journey from जी। end of that arguments. Very good, very good. अपनी अगर यही सवाल कोई मुझे इस्लामिक देश में पूछता, यही सवाल कोई मुझे
अफगानिस्तान में पूछता तो वहां आंसर मेरा दूसरा होता। वो भी बता दीजिए आप। अगर यही सवाल कोई अफगानिस्तान में मुझे पूछता, जहां पर आतंकवादी हाथ में AK-47 लेके बैठे हैं और वो कहेंगे कि क्या करना है, तो वहां पे मैं कहूंगा कि जो सामने बोल रहा है पहले उसकी सुन लो, नहीं तो गोली खाओगे। बहुत बहुत अच्छा। मैं अभी वो प्रफुल्ल भाई जो हमारे साथ है उसको उसने रेज किया हुआ है, तो मैं उससे वो क्वेश्चन, प्रफुल्ल भाई आओ, आपका कोई क्वेश्चन है बताइए। अभयदास जी, राम कबीर, राम कबीर, राम कबीर। आपने समझाया कि बीज रूपी शरीर में रम रहा, वो आत्मा की बात कर रहे हैं। जी। तो आत्मा, एलिवेटेड आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा आप हमको समझाइए कि भाई हम परमात्मा परमात्मा कर रहे हैं, तो आत्मा का जो एलिवेटेड रूप है वही परमात्मा है। There is two different sutras in Sanatan Dharma. One is Dvait और second is Advait. द्वैत जो है वो कहते हैं कि दो है, आत्मा और परमात्मा। अद्वैत जो है वो कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक है। ये दोनों रास्ते, क्योंकि मैं सुलह और सुलझ वाला व्यक्ति हूँ, मैं कभी नहीं चाहता कि किसी एक ओपिनियन पे स्टैंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अद्वैत पे चल रहे हैं वो भी हर्ट ना हो। मन वच काया, हमारी काया से, हमारे मन से या हमारे वचन से अगर कुछ कहने से भी किसी को तकलीफ होती है, ऐसा ओपिनियन हमें कभी नहीं देना है। अगर वो ओपिनियन आपके माइंड में सेट है, उसको बनाए रखो। लेकिन आपको पता है कि ऐसे ओपिनियन से अगर किसी को तकलीफ होती है, तो वो भी गिल्ट का एक कारण बनता है। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा अनुभव भी मेरे दिमाग में रहे। ऐसा अहंकार वाला ज्ञान भी हमें नहीं रखना है कि भाई मुझे पता है पर तुम गलत जा रहे हो। तो इसलिए सिद्धांत अलग-अलग बने हुए हैं, लेकिन मूल क्या है? मूल क्या है? मूल तो मुक्ति है। मोक्ष तो जीते जी हो जाएगा, मुक्ति जीते जी नहीं होगी। तो नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट यू वांट, मुक्ति और मोक्ष? Moksha, as far as I learned from the books of Kabir ji, या दुआज मोह एंड का क्षय होना, मोह का क्षय होना। तो ये तो जीते जी हो जाएगा। तो मोक्ष की व्याख्या करो गुरुजी, मोक्ष मैंने क्या है? बताया ना, मोक्ष की व्याख्या मोह का नाश होना। मोह का नाश होने का तात्पर्य है ये भजन, ये सुमिरन, ये जाप, ये बार बार हमें इंगित करता है कि अंतिम सत्य जो है वो मृत्यु है। इसलिए हम बार बार ये भजन गाते हैं, ये सारे सुमिरन करते हैं, ये सारे जाप करते हैं कि हम इस बात को याद रखें, भूले ना कि हमारी डेस्टिनेशन जो है, लास्ट डेस्टिनेशन जो है वो मौत है। इसलिए हम बार बार भजन करते हैं और बार बार भजन करते हुए हमारे अंदर में ये जो संसार की वृत्तियों के प्रति जो जुड़ाव है, जो लगाव है, वो होता है मोह। बार बार संत प्रेम की बात इसलिए करते हैं कि प्रेम होगा तो व्यवस्था बनी रहेगी, व्यवहार कुशलता बनी रहेगी और किसी से नाता भी जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां पर बंधन नहीं होता, और जहां पर मोह होता है वहां पर बंधन होता है। फर्क समझिए प्रेम और मोह में। फिर मैं मोह के नाश की बात करूंगा। प्रेम और मोह में फर्क है। मुझे प्रफुल्ल भाई से प्रेम है, इसके लिए मुझे उनके साथ होने की जरूरत नहीं। साथ आपका हाउस शेयर नहीं कर रहा, मैं आपके साथ आपकी गाड़ी शेयर नहीं कर रहा, उसके बावजूद मेरा आपसे प्रेम है, क्योंकि यहाँ पे निष्काम है, निष्पाप है, निश्चलता से है और किसी प्रकार की कोई होप्स मेरी आपसे नहीं है। मोह वहां होता है जहां पर मैं तो मेरे पति के बिना नहीं रह सकती, मैं मेरे पत्नी के बिना नहीं रह सकता,
मैं मेरे बच्चों के बिना नहीं रह सकता, मैं मेरे परिवार के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पे डिपेंडेंसी है। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि मेरे कंफर्ट को वो बनाने में मेरे सहयोगी हैं। मोह है, वहां सेल्फिशनेस भी होगा, मोह है वहां पर डिपेंडेंसी भी होगी। जहां मोह है अर्थात कोई ना कोई ऐसा बंधन है जिसकी वजह से वो जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां प्रेम है वहां पे निष्काम है, वो निष्पाप है, वो निश्चल है, और विदाउट एनी होप, अर्थात अनकंडीशनल लव जिसे आप लोग बोलते हैं। तो अनकंडीशनल लव जो है वो मेरे और प्रफुल्ल भाई के बीच में है। मैं मिला पहली बार, लेकिन वो बना है, और इसको आप जब मैं आऊंगा तब भी वैसा ही पाओगे, फिर भारत आ जाऊंगा तब भी वैसा ही मिलेगा। उसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आपसे कोई होप्स नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम करो, मोह ना करो। मोह करोगे तो लास्ट, टिल माय लास्ट ब्रेथ मैं किसी पे डिपेंड रहूंगा। डिपेंड रहूंगा तो यह सुख अपने अंदर नहीं रहेगा कि या तो मेरे पे वो डिपेंड है या मैं उस पे डिपेंड हूं। कोई ना कोई कनेक्शन रहेगा। जब वो कनेक्शन रहेगा तो मरने तक हमारे मस्तिष्क में ये गिल्ट रहेगा कि मेरे बाद उसका क्या होगा, और मेरे बाद उसका क्या होगा की सोच आपको फिर जन्मने के लिए मजबूर करेगी। तब आप मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए मोक्ष तो जीते जी हो जाएगा कि ये मोह खत्म कर दिया, हम अलगाव हो गए, प्रेम बन गया। लेकिन मुक्ति अगर चाहिए तो उसके लिए हमें मोक्ष से भी ऊपर उठना पड़ेगा। सही बात समझाई आपने गुरुजी। थैंक यू। થેન્ક યુ પ્રફુલભાઈ, थैंक यू। વેરી ગુડ. હવે દયા કાકાના એક ક્વેશ્ચન છે, હું એમને એડ કરું છું. દયા કાકા અનમ્યુટ કરજો. ઓકે. साहेब बंगी साहेब, साहेब बंगी साहेब राम कबीर बंगी साहेब, कबीर जी बंगी साहेब। साहेब जी। मैं तो अज्ञानी आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर भी आपने जब कहा ना कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, उसके आगे का रास्ता बताते हैं आप। तो मैंने कबीर साहब का, साहेब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है संत महापुरुष की कृपा से। तो विजय में कहा है साहेब ने, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिब्या पर आवे नहीं, निरखी परखी के ले। ये जो शब्द है साहिब ने कहा है, साखी नंबर 35 आई थिंक। और साहेब अमरमूल ग्रंथ में कबीर साहब ने कहा है, जब लगी ध्यान विदेह नियावे, तब लगी जीव भटका खावे। ध्यान विदेह और ज्ञान विदेह, दुर्लख पावे मिटे संदेह। पल एक ध्यान विदेह जो आवे, ताकि महिमा बरणी न जाई। काया नाम सबे गोहरावे, नाम विदेह कोई विरला पावे। साहेब बहुत लंबी कहानी है, फिर भी इतनी अगर आपको थोड़ी सी बात करना है तो मैंने जो बोला उसके ऊपर बात करो साहेब। अगर आप बहुत मैं आपने अद्भुत कहा, लेकिन आपने जो पहले साखी की थी उसको वापस एक बार दोहराएंगे? शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, सब कोई कहे, वो तो वो शब्द तो शब्द विदेह, विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरखी परखी के ले। जो विदेही शब्द है साहेब, तो वही बात आ गई ना जो मैंने अभी पूर्व में कही थी व्याख्या में। ये बात हाँ, वहीं आकर टिक गई। तन थिर मन थिर, मन साहिब की उसी साखी पे आया ना। तन थिर मन मन थिर वचन थिर। जब वचन थिर है तो जिह्वा पे कैसे आएगा प्रभु? आ ही नहीं सकता। तो ये उसी शब्द की बात है। जब तन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा, वचन स्थिर होगा, सुरति निरति, सुरति मतलब संसार के अंदर जो रति हमारी, निरति दौड़, वह भागना, ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक वह शब्द हमें सुनाई नहीं देगा जिसकी हम कामना करते। हाँ वह हाँ शब्द साहेब, कौन सा है?
जो हमारे अंतर मन में, हमारे अंदर भी एक संसार है। उस संसार की एक अनहद नाद जो ध्वनि है, वो इस संसार के अंतर मन में सुखाई देती है। जब हम इसमें इसमें ध्यान के अंदर भी एक क्रम बना हुआ है। ध्यान शुरू होता है, कोई नाभि मंडल से शुरू करता है, कोई मूलाधार से शुरू करता है। इसमें 100 रास्ते हैं। कोई नाभि मंडल से शुरू करता है, कोई मूलाधार से, कोई हृदय कमल से, ठीक है? कोई यहाँ से भ्रुकुटी से प्रारंभ करता है। लेकिन सबको जाना कहाँ पर है? शून्य शिखर पर, अर्थात उस शून्यता पर, जहां पर श्वास का आना और श्वास का जाना वो भी इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उस अवस्था में कोई अगर साइंस का जुड़ा हुआ व्यक्ति, आज के विज्ञान का जुड़ा हुआ व्यक्ति आकर के आपकी वेन्स पर हाथ रख के चेक करे हाथ के ऊपर, तो वो कहेगा ही इज डेड, मर चुका है ये। सांस को इतना सूक्ष्म करना, अर्थात पर वो मरा नहीं है, वो चेतन है, वो उस अनहद नाद को श्रवण कर रहा है। पर वो अनहद नाद श्रवण कब करेगा? जब वह व्यक्ति उस शून्यता को प्राप्त करेगा, उस सूक्ष्मता को प्राप्त करेगा, जिसमें श्वास का चढ़ना और श्वास का उतरना, उसके बीच का वो जो अल्पकाल है, वहां पर हम अपने आप को केंद्रित कर देते हैं। और इतनी धीरे होती है कि शरीर डेड घोषित कर सकता है ये साइंस, लेकिन वो चेतन है। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई महीनों निकाल सकता है, बिना खाए, बिना क्रिया किए, बिना किसी स्थिति के। और हम इसकी साधना क्यों करते हैं पता है? क्योंकि अंतिम सांस में हम उस शून्यता को प्राप्त करेंगे, तो दुनिया का किसी प्रकार का अनुभव, किसी प्रकार का गिल्ट हमें याद ना रहे, या तो हम करें ही ना, और या हमें याद ही ना रहे। इसके लिए हम ये सब करते हैं। और उस समय में जो हमारा प्राण मुक्त होता है, वो किसी भी प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर के होता है। और कुछ योगी तो दशम द्वार से फिर उस प्राण को निकालते हैं। दशवा द्वार पता है ना? छोटा बालक होता है, जब 1 दिन का 2 दिन का, उसकी कपाल में सॉफ्ट होती है स्किन, तब देखना वो ऐसे ऐसे करता है कपाल। क्यों करता है? वहां पे दशम द्वार है। कुछ लोग तो प्राणवायु को वहां केंद्रित करके वहां से निकालते हैं, अर्थात वो अनहद में आनंद लेते हुए दशम द्वार से प्राण को मुक्त करते हैं। तो वो अनहद है जो जिह्वा से बोलना नहीं पड़ता, वो सुनाई देता है जब आप ध्यान के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो दया भाई, मुझे इससे ये पता चला है कि आपको इस मार्ग में आगे प्रगति करनी है। आपको उस मार्ग की लोलुपता है, आप चाहते हो उस मार्ग में आगे जाना। तो हम जब अमेरिका आएंगे और हम मिलेंगे, तो हम जब ध्यान का सेशन रखेंगे, तब आपके इन सवालों में मैं क्रम वाइज, स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाऊंगा, और मैं आपका हाथ थामूंगा, आपका सहयोगी बन के। और साहेब, आगे की बात है, ये साखी की बात हो गई साहेब। अब कभी साहब कहते हैं अमरमूल में, जब लगी ध्यान विदेह आवे, तब लगी जीव भटका खावे। ध्यान विदेह और ज्ञान विदेह, दुलख पावे मिटे संदेह। पल एक ध्यान विदेह जो आवे, ताकि महिमा बरणी न जाई। काया नाम सबे गोहरावे, नाम विदेह कोई विरला पावे। सो साहेब, जब लग ध्यान विदेह नहीं आवे, तब लगी जीव भटका था। और ध्यान बिल्कुल विदेह ज्ञान विदेह, दोई लख पावे मिटे संदेह। पल एक ध्यान विदेह जो आवे, ताकि महिमा बरणी न जाए। जी, काया नाम सबे गोहरावे, नाम विदेह कोई विरला पावे। जी, साहेब, सदगुरु बिल्कुल साहब ने, सही कहा। इसमें ज्ञान का जो मार्ग बताया है, वो ज्ञान मार्ग की बात इसलिए कही गई कि जब हमारे मन में जो संदेह उत्पन्न होते हैं, 3 मार्ग होते हैं।
उस स्थिति को पाने के लिए जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की, जिस ध्यान की मैंने चर्चा की, 3 मार्ग हैं। एक है भक्ति मार्ग, एक है ज्ञान मार्ग और एक है ध्यान मार्ग, उपासना मार्ग। इन 3 मार्गों में कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली उपासना मार्ग के लिए बने होते हैं। वो जो डायरेक्टली उपासना मार्ग के लिए बने होते हैं, वो लोग कौन होते हैं? जिनकी बुद्धि कौशल ईश्वर ने, जिनका स्वभाव इतना ज्यादा प्रवीण होता है कि वो डायरेक्टली उस ध्यान मार्ग में जाने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर साहेब ने ये ज्ञान का विषय इसलिए कहा क्योंकि जिनके मन में हर पलक पलक में संदेह हर बात पे उठता है, ऐसे संदेह को दूर करने के लिए साहेब ने कहा है पहले तुम्हें ज्ञान मार्गी बनना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग से आपको अपने अंदर उठने वाले संकल्प विकल्पों को पहले हटाना है, तब जाकर के वो ध्यान विदेह होगा। और वो ध्यान जब विदेह होगा तब उसमें कहा कि एक लौ मात्र का भी आनंद अगर आपने एक बार पा लिया तो आप बार बार उस आनंद को पाने के लिए लालायित रहेंगे। मैं तो जिस आनंद को कह रहा हूं महीनों पाने के लिए, साहब ने कहा कि एक दिन एक क्षण मात्र भी आप पालोगे ना, एक बार भी छू करके भी आ जाओगे ना उस स्थिति को, तो बार बार उस स्थिति में जाने की आप कोशिश करोगे। और उस स्थिति को जाने के लिए जब आप बार बार कोशिश करोगे, एक बार छूने के बाद तो फिर वो निरंतर प्राप्त होती रहेगी, होती रहेगी। थैंक यू। जो आपका भजन है उसका यही अर्थ है। थैंक यू दया काका। ओके भरत भाई अनम्यूट Bharat करजो go તમે. ahead. Bharat, yeah. Unmute करजो भरत भाई. Yeah, go ahead. राम कबीर रविदास जी। राम कबीर मेरा राम कबीर हाँ, राम मेरा कबीर आप सब। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है, अभी हम सब लोग भटके हुए हैं समाज जी। में। तो ये समाज, हम इंडिया से आए थे, हम लोग छोटे थे तो इतना बहुत बढ़िया समाज था। थोड़ा अमेरिका आए, थोड़ा हम लोग अभी थोड़ा प्रॉब्लम में है थोड़ा। तो यूनिटी के बारे में आप क्या लगते हैं? अभी यूनिटी होना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि एक ये होना चाहिए और अदर मानते ये होना चाहिए, तो दूसरा दो रास्ता चलने पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी? नहीं, मेरा इसमें एक छोटा सा प्रश्न सभी लोगों से ये रहेगा कि जब ईश्वर ने स्वभाव अलग बनाए, विचार अलग बनाए, तो एक होना ही क्यों है? पहली बात। दूसरी बात, अगर एक होना है तो एक स्वभाव के लोग एक हुई है। अगर एक होना है तो एक विचार के लिए लोग एक हुई है। और उसके लिए क्या हुआ, आपको मैं एक छोटी सी जानकारी देता हूं। हमारे देश में 4 प्रकार के वर्णों के बारे में बड़ी चर्चा होती है भरत भाई। कौन यहाँ कौन से पे वर्ण है? सुनो, कौन से वर्ण है? एक है क्षत्रिय, एक है ब्राह्मण, एक है वैश्य और एक है शूद्र। तो ये 4 प्रकार के वर्ण बने कैसे होंगे पता है आपको? मैं आपको ले जाता हूं आज से 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख करोड़ साल पहले की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा समूह होगा। मैं अपनी कल्पना आपके सामने रखता हूं, अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताना। मैं अपनी इमेजिनेशन आपके सामने एक बहुत बड़ा समूह होगा। उस समूह में किसी एक नायक ने घोषणा की होगी, कौन लोग हैं जो हम सबको हिंसक जानवरों से बचाएंगे। उस समय धर्म भी नहीं था, उस समय में कुछ नहीं था, खाने के भी लाने पड़ रहे थे, हिंसक जीव मनुष्य जाति को खत्म कर रही थी। उस समय उस नायक ने कहा होगा कौन लोग होगा जो हमें हिंसक जीवों से बचाएगा। तब उन विचारों वाले, उन वेग वाले, तीव्र वेग के साथ, झुंझारूपन के साथ समाज की रक्षा करने की सोच के लोग होंगे, वो सब एक तरफ हुए होंगे कि हम आएंगे, हम रक्षा करेंगे आपकी। ऐसे 1, 2, 4, 1 लाख में से 10,000, 20,000 लोग होंगे जो एक तरफ हो गए होंगे कि हम करेंगे तुम्हारी रक्षा। फिर उनको क्या कहा पता है? कि तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षेत्र की रक्षा करते हो। जाति की बात है ही नहीं यहाँ पे। तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षेत्र की रक्षा करोगे।
क्षेत्र की रक्षा के लिए वो लोग निकल पड़े, एक बहुत बड़ी बाउंड्री बनाई, एक ऐसी वॉल बनाई कि कोई अंदर घुस ना पाए, हमारे मानव जाति के साथ कोई खिलवाड़ न कर पाए। खूब हिंसक जानवरों से युद्ध लड़ने का कौशल उन्होंने दिखाया होगा। सिंह जैसे, उस समय तो हाथियों के भी बड़े बड़े दांत हुआ करते थे, सूअर के भी बड़े बड़े खुर हुआ करते थे। उनको मारने की क्षमता वाले लोगों ने क्षत्रिय उनको कहा होगा कि ये क्षत्रिय हैं जिन्होंने हमारा बचाया। फिर जब सब बच गए होंगे, तब किसी से पूछा होगा कि कौन होगा जो ये खाली आलस में खा पी करके पड़े रहते हैं, इस दुनिया को काम धंधे में लगाएंगे। तब उसमें से कुछ एक विचार के 10-20 हजार लोग एक तरफ हुए होंगे जिन्होंने कहा था कि ये काम हम करेंगे। उनको कह दिया होगा तुम व्यापारी लोग हो, तुम वैश्य हो, जाओ। इनमें से कुछ लोग फिर नायक ने कहा होगा, अरे भाई व्यापार तो कर लेंगे, लेकिन व्यापार में गणना करने की बुद्धि कौन देगा? तब कहा होगा कौन लोग होंगे जो हम सबको बुद्धि और गणना करना सिखाएंगे? तो कुछ 10-20 हजार लोग हुए होंगे जिन्होंने कहा होगा हम सिखाएंगे। तो कहा कि तुम ब्राह्मण होंगे, जाओ भाई। यहाँ जाति की बात नहीं है, विचार की बात है और स्वभाव की बात है। जो उस स्वभाव प्रकृति के लोग होंगे वो अलग हो गए होंगे। फिर कौन बचा? वो लोग जो कहे महाराज ना तो हमसे काम होगा, ना हमसे लड़ाई होगी, ना हमसे शिक्षा दीक्षा करनी होगी, हम तो बस आराम से खाएंगे और मौज करेंगे। तब उनको कहा होगा अरे कुछ नहीं तो कम से कम झाड़ू पोछा तो लगा लो, फोकट तो मत बैठो, 10 मिनट काम धंधा, कहीं किसी की सेवा चाकरी, कुछ नहीं तो यहाँ से सामान उठा लो, कोई बोझा ढोलो, इतना तो कर लो। तो वो लोग फिर कौन कहलाए होंगे? शूद्र। अब इन 4 विचारों को आप एक कभी नहीं कर सकते, ये हमेशा बने रहेंगे। चाहे कोई कितना भी अमीर हो जाए, कोई कितना भी समृद्ध हो जाए, पैसा किसी के स्वभाव को बदल सकता है क्या? नहीं। पैसे वाले लोगों के घरों में भी ऐसे आलसी बच्चे पैदा होते हैं जो सुबह से शाम तक खा पी के पड़े रहते हैं, 200-300 किलो उनका वजन हो जाता है। मेरी दृष्टि में वो शूद्र ही हैं, वो धरती पर बोझ हैं, वो कुछ नहीं करना चाहते। कुछ लोग भले ही निम्न जाति में पैदा होते हैं, हमारे पंजाब के रविदासियों को देखिए, जो रविदास जी महाराज को मानते हैं, जो चमार जाति के रहे, जो निम्न जाति के रहे, उन्होंने बुद्धि कौशल से काम किया। आज इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका में देखिए आप कितने बड़े बड़े व्यवसाय कर रहे हैं। वो शूद्र नहीं रहे, वो आज के समय में वैश्य हैं। तो अगर आपको एक करना है तो एक विचार वालों को एक करिए। भक्ता समाज में अगर जिनके विचार न हम करेंगे न हम करने देंगे, उनको शामिल करने की सोच रखोगे, तो जो यूनियन बना हुआ है, जो लोग एक विचार के हैं, वो उसे भी तोड़ करके खत्म कर दें। तो सबको एक करने की सोच को छोड़ो, एक विचार को एक करने की कोशिश करो। वेरी 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 गुड, बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। तो अभी थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, आई नो भरत भाई, आप यू हैव वन क्वेश्चन, बट देयर इज लाइक आप सभी को ये जानना चाहिए कि ये गुरुजी हमारे साथ जुड़े हुए, वो इंडिया से जुड़े हुए, और इंडिया में कितना बजा है वहां पे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर देते हैं अभी। और आप सभी यूएस वासियों को मैं बता दूं कि सवेरे कल नित्य मैं 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे उठ करके मेरी दिनचर्या शुरू होती है। भारत में हम उस स्थिति में होते हैं कि सुबह 5:30 से 6:30 1 घंटा मैं अपना योग और प्राणायाम और ध्यान करता हूँ, और 7 बजे से यहाँ पर लोग आने प्रारंभ होते हैं। सुबह से लेकर के 8 से 9-10 बजे तक मैं बाल संस्कार शिविर बच्चों का मैं खुद अटेंड करता हूँ। बच्चों से सवाल जवाब उनका मैं जवाब देता हूँ। उसके बाद 2 बजे से 6 साढ़े 6 बजे 4.5 घंटे का मेरा चातुर्मास में प्रवचन, कथा, सत्संग चल रहा है, वो करता हूँ। बहुत बड़ी भीड़ होती है, करीब 10,000 से ज्यादा लोग मुझे प्रतिदिन यहाँ पर सुन रहे हैं मेरे चातुर्मास के दौरान। उन लोगों के बीच में से निकलता हूँ तो जब आवास पे पहुंचता हूँ, उससे पहले 500 से 1,000 लोग मेरे आवास पे पहुंच जाते हैं। उन लोगों से डील करते करते रात के 11:30 बजे तक आप लोगों के बीच आया हूँ। तो ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। तो वो कोई हेमंत भाई चिंता नहीं, ये मेरा काम है। मैं अपनी हर श्वास से आपके साथ जुड़ा हूँ, उसकी चिंता ना करें। लेकिन सबका नंबर आए, सभी अपने अपने सवाल पूछ पाए, इसका सबको ध्यान रखें।
राइट, नहीं कोई बात नहीं। तो अब जैसे आप हमारे साथ और भी जुड़ेंगे और दिन भी आएंगे, वैसे एक हमें भी इच्छा थोड़ी सी लगती है। तो अभी ऐसा करते हैं, दीपक भाई का एक क्वेश्चन है, तो दीपक भाई आपका क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। थोड़ा क्विक रखना, और बाद में जैसे मैंने बताया कि, और जैसे गुरु जी ने भी बताया कि वो वहां पे अभी भगवत कथा चल रही है ना, तो भगवत कथा कुछ उसमें जी। भी वो बहुत बिजी है। फिर भी उन्होंने और बिजी, इस चातुर्मास के दौरान जो है सिर्फ भागवत कथा ही नहीं, मैं मीरा जी के चरित्र को, मैं तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं दुनिया को, सूरदास क्या कहना चाहते हैं, कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं, हर महापुरुष के विचार को दुनिया को सुनाता हूँ। फिर पता चलता है कि जो जिस चॉइस वाला है उसको पकड़ लेता हूँ। आजा भाई। अच्छा दीपक भाई बोलिए। स्टेट क्वेश्चन। आपने बताया धर्म मार्ग जहाँ खत्म होता है वहां से अध्यात्म मार्ग शुरू होता है। अभी धर्म बदलता रहता है सिचुएशन के हिसाब से, तो क्या अध्यात्म ही बदलता रहता है? धर्म कैसे बदलता रहता है, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। तो सिचुएशन मतलब गीता के अंदर बताया कि एक आदमी देवर लूटर कम्स एंड दे वर लूटिंग यंग वुमन एंड टेकिंग विद देम, और उनका फादर है वो बीमार है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उसको फादर को बचाना चाहिए या उस यंग लेडी है उसके पीछे जाना चाहिए, उसको बचाना चाहिए? तो ये जी परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है धर्म। जी। तो देखो, धर्म परिस्थिति के अनुसार इसलिए बदलता रहता है क्योंकि हम उस धर्म में होते हुए लौकिक जगत की परिकल्पना से जुड़े हैं, और जब तक हम लौकिक जगत में रह करके लौकिक जगत के धर्म को हम अपना मार्ग बनाएंगे, तब तक ये कंडीशंस आपकी बनती रहेगी जो अभी आपने बताई, ये सिचुएशन बनती रहेगी। तो आध्यात्म जो है वो लौकिक जगत से उसका कोई लेना देना नहीं। आध्यात्म जो है इस लौकिक जगत से परे है। तो सिंपल सी बात है, जहां पर ये सारी कंडीशंस खत्म हो जाएंगी कि हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म, मजहब, व्यवस्था, गुरु, महापुरुष, संप्रदाय, इन सारी चीजों को जब भूलना है ना, मैं कहता हूँ मोक्ष भी वहां है जहाँ मुक्ति तो वहां है जहाँ भगवान भी ऊपर नहीं है। ये बहुत सिंपल सा उत्तर है। मुक्ति तो वहां है जहाँ मेरे ऊपर भगवान भी नहीं है। नहीं तो ये भगवान ऊपर वाला डर भी कहीं अंतिम समय में मुझे रोक ना दे। जी ઓકે, થેન્ક યુ દીપકભાઈ. ફરીથી બધાને પાછા મેં યાદ કરાવી દઉં કે ગુરુજી આપણા સહયોગી, આપણા સાથી કે જે આપણાની સાથે આધ્યાત્મિકમાં ફ્રન્ટ પર ચાલવા તૈયાર છે, એ હમણાં ઇન્ડિયામાં પણ બહુ બિઝી રહી છે. એમણે પણ એમનું સ્કેડ્યુલ બતાવ્યું એ પ્રમાણે, અને આપણો પણ સમય થઈ ગયો છે એટલે તો ફરી પાછા એમને પાછા આપણે નેક્સ્ટ મંથ પણ લાવીશું. અને એક વિશેષ નોટ એ કરી મૂકજો કે પ્રીતિબેન મુકેશભાઈ ભક્ત બેનિંગ, અગેન પ્રીતિબેન મુકેશભાઈ ભક્ત બેનિંગ અને આનંદભાઈ સોમભાઈ પટેલ કોસ્ટા મેસા કેલિફોર્નિયા, બંને કેલિફોર્નિયામાં જ છે. અને હું મને પણ કે અમારા કંઈક કબીર વિઝડમ ટીમને પણ ગુરુજી અમેરિકામાં આવે છે ઓગસ્ટ 14 પછી, તો એમનો સ્કેડ્યુલ, એમને તમારે કોન્ટેક્ટ કરવો હોય કેવી રીતે કરી શકો એ બધું તમે અમને અમારો કોન્ટેક્ટ કરીને તમે જાણી શકો છો. અને કેલિફોર્નિયામાં એટલે કે લોસ એન્જલિસ એરિયાની અંદર મોસ્ટ પ્રોબેબલી ઓગસ્ટ 21 થી થોડો આપણે સ્કેડ્યુલ કરવા માંડ્યા છીએ અત્યારે. તો જો કોઈકને પણ એવું કંઈક વધારે કંઈક જો ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય તો ફીલ ફ્રી ટુ ગીવ અસ કોલ. અગેન પ્રીતિબેનને જે બેનિંગ કેલિફોર્નિયા, અને આનંદભાઈ જે કોસ્ટા મેસા કેલિફોર્નિયા, અને હું છું કે અમારી પોતાની આપણી જે કબીર વિઝડમ ટીમ છે એનો તમે કોન્ટેક્ટ કરી આપણે કેવી રીતે એમને વાત કરી શકાય અને ક્યાં મળી શકાય એના માટે તમે બધા જણાવજો. अगेन थैंक यू अभयदास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग कि आपने जो हमें एक प्रॉमिस दिया हुआ है कि नहीं आप हमारे साथी बनने के लिए तैयार हो, तो ये कभी भूलना मत. हम तो अभी भूलेंगे नहीं. नहीं, वैसे हमें तो आपका वो पीछा चाहिए ही, आपका साथ चाहिए. पीछा तो नहीं चाहिए, फिर भी साथ चाहिए कि जैसे हमारे साथ आप हमें भी अच्छी तरह से बता सके. और कुछ अगर लास्ट बिल्कुल। मुझे कंक्लूजन करना है. बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर,
बस जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सहयोगी भाव मेरा और आप लोगों का भी जो मेरे प्रति प्रेम है, स्नेह है, यह सदैव बना रहे, ईश्वर बनाए रखे, वह परम शक्ति बनाए रखे। और मेरा ये जो आत्मविश्वास के साथ आप लोगों को कहने का ये जो भाव है ना कि मैं आपको संभालूंगा, मैं आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूँ, इस आत्मविश्वास के पीछे एक ही ताकत कार्य करती है, वो है आध्यात्म की, जो मुझे बार बार तैयार करती है कि मैं कौन हूं। अगर मैं जान गया हूं तो अब मुझे सबको जनाना है। कोई मुझसे पूछता है कि आपको पता है आप कौन है, तो मैं उनको कहता हूँ हाँ मुझे पता है कि कौन हो आप। मैंने कहा मैं वही हूँ जो आपका साथ दूंगा। बहुत इससे बहुत ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस बार अमेरिका में मैं लंबे प्रवास पे आ रहा हूँ। पिछली बार आया था तब मैं 20 दिन रहा था, लेकिन 20 दिन में भी पता नहीं क्या योग बना। भारत में जिस तरह से हमारा जीवन रहता है, सुबह की फ्लाइट लेके अहमदाबाद, शाम को दिल्ली और अगले दिन सुबह चेन्नई में कार्यक्रम करते हैं। और भारत में कई बार इतनी व्यस्तता रहती है कि हमें निजी विमान से भी, कई बार हमारे हिसाब से फ्लाइट्स नहीं होती तो निजी विमान से यात्रा करनी पड़ती है। ऐसा ही इस बार जब अमेरिका आया तो मुझे प्रतीत हुआ कि इतना दूर है एक स्थान से दूसरे स्थान कि मैंने कार्यक्रम तो ले लिए बहुत सारे, पर मैं 25 दिन जब अमेरिका रहा, 20 दिन, उन 18 दिनों में से 10 दिनों तक हवाई जहाज में ही नींद लिया। अमेरिका में इतनी दूरी है एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में। कब मैंने डीसी में कार्यक्रम किया और कब मैंने फ्लोरिडा में मायामी में किया और कब मैंने ह्यूस्टन में किया और फिर अगले दिन जाके वापस डीसी बाल्टीमोर और फिर न्यू जर्सी और फिर डीसी, इस तरह से प्रोग्राम करते करते मुझे महसूस हुआ। तो मैं चाहता हूं कि इस साल मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत गौरव की बात है कि भारत देश का प्रतिनिधित्व के तौर पे मैं वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट जो शिकागो में इस साल हो रही है, एक समय में स्वामी विवेकानंद ने उसे संबोधित किया था। इस वर्ष मैं भी उस कार्यक्रम में, मुझे मिस्टर स्टीफन एविनो जो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट ग्रुप के अभी चेयरमैन है, स्टीफन एविनो ने मुझे एज ए डेलीगेट फ्रॉम इंडिया मुझे इनवाइट किया है और मैं उस कार्यक्रम में 5 दिनों तक रहूंगा। और मेरा 1.5 घंटे का एक कार्यक्रम भी उन्होंने अलग से रखा है। ये मेरे लिए भी बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि शिकागो में मैं 14 तारीख से 18 तारीख रहने वाला हूँ और 19 तारीख को रात में मैं कैलिफोर्निया पहुंचने वाला हूँ, प्रीति बहन के आवास पर, मुकेश भाई बख्ता जो है प्रीति बहन बख्ता के यहाँ, मुकेश भाई पटेल के यहाँ। तो मैं जरूर चाहूंगा कि 19 से लेकर के हमने जो 2, 4, 5 सितंबर तक का जो मेरा 15 दिन का समय मैं कैलिफोर्निया को दे रहा हूँ, कैलिफोर्निया के साथ साथ अमेरिका का वो हिस्सा जहां पर मैं आसानी से 3 घंटे 2 घंटे की फ्लाइट से ट्रेवल करके आप सब लोगों तक पहुंच पाऊं, इस तरह का शेड्यूल ही बनाइएगा। क्योंकि पिछली बार मेरा लैक ऑफ नॉलेज के कारण मेरा पूरी यात्रा में मैं किसी भक्त के घर न ठहर के मैंने फ्लाइट में ही नींद ली है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं आप लोगों के आवास पर रुकूं। तो इस तरह की योजना बनाइएगा और कोशिश करिएगा कि मेरा एक दिन, मेरा 1 सेकंड भी खाली ना रहे। मेरे हर सेकंड की बहुत कीमत है। क्यों है? क्योंकि मेरे पास में लिमिटेड समय है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मेरे पास जितना समय है उस समय को आप लोग ले लीजिए। क्योंकि मैं ऑलरेडी 27 का हो गया हूँ, अब पता नहीं कितना समय बचा है। तो जब तक है लूट लो, खोना मत मेरे समय को। तो जितना समय बचा है उसका पूरा एक एक सेकंड उपयोग में लेना। और मुझे वहां पर सिर्फ सारथी की जरूरत है, ऐसा सारथी जो मेरे साथ रहे, मुझे हर सवाल पूछने वाले तक पहुंचाए। बस मैं इतना चाहता हूँ। बाकी आप सबके जीवन में खूब मंगल हो, ईश्वर आप सभी को बहुत प्रसन्न रखे, आप सबके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण करो और सभी आध्यात्मिक आलोक आपके जीवन में खूब बढ़े, खूब विकास करें, यही कामना और मंगल आशीर्वाद आप सभी को देता हूँ। जय जय राम कबीर। राम कबीर। थैंक यू अगेन। ओके, सो प्रफुल्ल भाई આજની પૂર્ણાહુતિની પ્રોસેસ કરશે તો પ્રફુલ્લ ભાઈ। થેન્ક યુ અભયદાસજી સાહેબ, બહુ આનંદ થઈ ગયો। આધ્યાત્મિક યાત્રા આપણી સાથે ઘણા ભક્તજનોને લાભ લીધો અને અમે શીખીશું એમાંથી, અને વારંવાર
બીજી તમારી અમેરિકાની યાત્રા પર અમે પણ યાદ કરીશું તમને અને આપણે કાર્યક્રમ ગોઠવીશું. હવે નેક્સ્ટ વીકે સત્યપ્રકાશના રચયિતા શ્રી દયાનંદ સરસ્વતીના ડિસાઇપલ શાસ્ત્રીજી તેમનો સત્સંગથી વેદાંતની વધારે સમજણ તેઓ પાડશે. તો સૌ જોડાજો. હવે આપણે શાંતિ મંત્ર બોલી કાર્યક્રમને વિરામ આપીશું. હરિઓમ. પૂર્ણ એ છે પૂર્ણયા છે પૂર્ણથી તો પૂર્ણ ઉગ્યું છે બધું પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ આપી દો ભલે શેષ પાછળ પૂર્ણ રહેવાનું સદા. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. રામ કબીર.